आप सभी का हार्दिक स्वागत। अभी स्टार्ट हो गया। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले अनुरोध करूंगा डॉक्टर उषा साहनी, जो मेरठ के शहीद मंगल पांडे पीजी गर्ल्स कॉलेज में अंग्रेजी विभाग में व्याख्याता हैं, एक कवयित्री, कथा लेखिका के रूप में आपने पिछले वर्षों में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। कविताओं की आपकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, एक कथा संकलन प्रकाशित हो गया है और कुछ अन्य कृतियां जो साहित्य की विभिन्न विधाओं पर केंद्रित हैं प्रकाशनाधीन है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सरस्वती वंदना और हमारे इस आयोजन की पृष्ठभूमि के बारे में आप सभी के साथ एक संवाद करें। डॉक्टर उषा साहनी। धन्यवाद सर। माँ शारदे के श्री चरणों में 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना। Welcome to one and all. We are fortunate that we are conducting 55th webinar of this webinar series of communication today, which is a bilingual media journal. Fortunate to have Professor Sanjeev Bhanawat's brilliant mind behind this entire series, because of whose efforts we could relish to listen eminent speakers talking upon various topics related to media education. The writer side, he has not left other topics also. एक सेकंड, शर्मा जी से अनुरोध करूंगा, ये अपना जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं इसको आप बंद कर दें, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हो रही है, वो इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा। शर्मा जी जो स्क्रीन शेयर कर रखी है आपने, आपसे अनुरोध है कृपया इसको स्टॉप करें ताकि इसकी विजिबिलिटी ठीक हो सके। अभी भी आ रहा है आपका? यदि नहीं हो रहा है तो एक बार आप लेफ्ट हो जाएं, रीजॉइन कर लें वापस। आप एक बार इस मीटिंग से निकल के दोबारा ज्वाइन कर लें आप। चलिए, नहीं समझ पा रहे हैं शायद। चलिए शुरू कीजिए फिर आप, मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। So, not only the topics related to media education have been discussed here on this platform, but also many topics related to body language, personality development. In past, we have held a number of webinars with Professor Anil Mehta also, the one who is there amongst us today on this platform. And we were fortunate to listen to him as well. But today we have Ashish with us, who is going to talk about the importance of body language so that we can understand the feelings and emotions of the other person who is actually interacting with us. It's a topic which is of interest of each and every one. And not only the biggest point here is that we got 355 registrations for this topic. So now we can understand the importance of it. And when this entire webinar series was started on 2nd of October 2020, the way Professor Bhanawat had started it, it was not that easy, but he has left no stone unturned to make a point that all the eminent speakers are going to deliver something new here so that we all can get the benefit out of it. Professor Bhanawat has already brought more than 10 special issues of media education through his journals journey, and also made a remarkable, successful 25 years journey, completing silver jubilee of this
Media Journal last year, and we have entered in the first year of coming Silver Jubilee, which is going to complete another, hopefully it will be extremely successful, that we will be completing the Golden Jubilee as well under his able guidance. Today, the topic, as all of you have already read it, what it is, but still a brief intro is always required so that the people who are joining at present can understand what it is all about. So handing over the stage to Professor Sanjeev Bhanawat to provide the brief introduction of the topic of today's. Please, sir. धन्यवाद डॉक्टर उषा साहनी। कम्युनिकेशन टुडे की पिछले लगभग 18 महीने की ये यात्रा आज उस श्रृंखला की इस 55वीं कड़ी में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर आशीष द्विवेदी को। डॉक्टर आशीष द्विवेदी इस समय सागर में इंक मीडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन उसके निदेशक के पद पे काम कर रहे हैं, और ये इंस्टीट्यूट भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से संबद्ध है। आशीष द्विवेदी आज जिस विषय पर आपसे बात करेंगे, ये विषय मुझे लगता है हम सभी के बहुत करीब है। हम हमारे दैनिक जीवन में प्राय इस तरह की बहुत सारे संदर्भ आते हैं जब हम बॉडी लैंग्वेज या हमारी दैहिक भाषा या शारीरिक भाषा उससे कहीं ना कहीं संवाद करते हैं। बहुत सारे मुहावरे हैं, आंखों आंखों में बात करना, किस तरह से व्यक्ति की आंखों को पढ़ के हम उनकी भावनाओं का कहीं ना कहीं साक्षात्कार करते हैं, रूबरू होते हैं। जीवन की अनेक भाव भूमियां हैं। कभी गुस्सा है, वो छोटा सा बच्चा जब उसकी ओर आप देखते हैं तो आपकी मुख मुद्रा से वो पहचान लेता है कि आपके मन में वात्सल्य का भाव है, या कहीं आप क्रोध से उसे वो जो कुछ कर रहा है उसको न करने की हिदायत दे रहे हैं, या किसी मित्र के यहाँ बैठ के जब वो बिस्किट लेने का प्रयास करता है तो आपके नेत्रों का इशारा ही उसको संकेत करता है कि नहीं, बहुत हो गया, ये सब उचित नहीं है। तो हम इन इशारे से बहुत कुछ बात कर देते हैं। जैसे हम किताब पढ़ते हैं, उन किताब के हर पृष्ठ के अंदर एक नई भाव भूमि या विचारों से हम रूबरू होते हैं। वहीं शायद हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न कार्य व्यापारों से हम इन भाषाई या जो हमारा एक कम्युनिकेशन का स्टाइल है बिना बोले, उससे कहीं हम परिचित होते हैं। हमारा आत्मविश्वास, कभी हम जैसे इंटरव्यूज में जाते हैं या इंटरव्यू लेते हैं तो वो कैंडिडेट किस तरह का व्यवहार करता है, कभी वो बाल बना रहा है, कभी ऊपर के बटन को पकड़ रहा है, कभी वो शर्ट को, इस तरह से कई तरह की भाव भंगिमाएं हैं जो उसके आत्मविश्वास को, उसकी अनुभूतियों को, उसकी मानसिक प्रवृत्तियों को कहीं ना कहीं अभिव्यक्त करता है। शायद अलग अलग तरह की रिसर्च हुई है, 50% से लेकर के 90% तक ये माना जाता है, अलग अलग स्टडीज में अलग अलग तरह की बात की गई है कि जो हम बात भावों से नहीं, शब्दों से नहीं समझा सकते हैं, वो भावनाओं के माध्यम से समझा सकते हैं। मुझे याद आ रहा है, बहुत पहले संजीव कुमार की एक फिल्म आई थी जिस पूरी फिल्म में कोई संवाद नहीं था। आप देखिए उस अभिनेता में कितना उनका सशक्त अभिनय होगा कि केवल भावों के माध्यम से, और हमारे यहाँ तो 9 रस की कल्पना की गई है, वो शायद हमारे जो विभिन्न भाव मुद्राएं हैं उसी पर केंद्रित है। रौद्र रस, वीर रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, न जाने कितने तरह के रसों की कल्पना हमारे साहित्यिक परंपरा में होती है। और जब ये बात करते हैं कि मुझे एक महाकवि बिहारी का वो 2 पंक्तियां याद आ गई, जिस तरह से उन्होंने नेत्र व्यापार की कितनी भाव भंगिमाएं हो सकती है उन शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया। कहत नटत रीजत खीजत खिलत मिलत मुस्कात, भरे भवन में करत है नैनन ही से बात। एक साहित्यकार उस नायक नायिका के एक भरे हुए भवन में जब बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, अपनी उन मर्यादाओं के बीच किस तरह से बात कर लेते हैं, उसकी कितनी एक भाव व्यंजना जो है महाकवि ने उसमें प्रस्तुत की थी। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे दैनिक जीवन में ये बॉडी लैंग्वेज या शारीरिक भाषा या मुद्राओं का एक विशेष अर्थ है। अब सवाल यह है कि हम किस तरह से व्यक्तियों को समझने की कोशिश करें, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। वस्तुतः इस आयोजन की पृष्ठभूमि में आशीष द्विवेदी की एक पुस्तक के कुछ अंश थे। आशीष जी ने एक टिप्पणी लिखने के लिए मुझे अपने पुस्तक के कुछ अंश भेजे। संवाद शास्त्र नाम से वो एक पुस्तक लिख रहे हैं। जब संवाद शास्त्र की बात आई, चूंकि हम दोनों मीडिया अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए हैं, तो मेरे सबकॉन्शियस में ये विचार था
कि शायद उन्होंने न्यूज़ राइटिंग पे ये किताब लिखी है, क्योंकि न्यूज़ को, समाचार को हम संवाद भी कहते हैं अपनी बातचीत की शैली में। तो मुझे लगा वो न्यूज़ पर है। जब मैं पृष्ठ पढ़ने लगा तो मुझे उसमें कहीं न्यूज़ तो दिखे ही नहीं, वो बात सारी संवाद शैली पर केंद्रित थी। और आगे पलटा, मैं लास्ट तक गया, तब तक वही बात हो रही थी। तो मुझे लगा कि एक कोई व्यक्ति केवल संवाद कला के ऊपर लगभग 100 पृष्ठ लिख करके मुझे भेज सकता है, तो न जाने कितने डायमेंशंस उन्होंने कवर किए होंगे। तो मैंने उनको तुरंत फोन किया। मैंने कहा ये विषय तो मुझे इतना रुचिकर लग रहा है, और जिस तरह से इसको आपने प्रस्तुत किया है अपनी लेखनी में, वो और भी अद्भुत लग रहा है। तो मुझे लगता है कि आप अपने इस अनुभव को हमारे इस कम्युनिकेशन टुडे के मंच के माध्यम से देश भर में जो हमारे मित्र निवास कर रहे हैं और उनसे समय समय पर जुड़ते हैं, उनके साथ संवाद करें। हमारी तकनीकी सहयोगी पृथ्वी ने मुझे अभी मैसेज किया, पृथ्वी सेंगर ने, जो IMT यूनिवर्सिटी मेरठ में मीडिया का अध्यापन कर रही हैं, कि अब तक 341 रजिस्ट्रेशन हो चुके। हमारा जो 48th वेबिनार थी उसका अधिकतम संख्या 311 थी, और अब हमने एक तरह से इसका भी रिकॉर्ड बनाया है। तो इस ऑफलाइन होते हुए दौर में इस तरह की वेबिनार्स के प्रति इतना मोह और स्नेह प्रोत्साहन हमको मिलता है, तो मुझे लगता है ये आशीष द्विवेदी का जो विषय है और उनकी अभिव्यक्ति क्षमता है, शायद उसी का ये प्रतिफलन है। कई बार मिलना हुआ, आशीष जी की वक्तृत्व कला को मैंने बहुत निकटता से देखा है। जयपुर भी इनका 2-3 बार आना हुआ, और देश में अलग अलग मंचों पर जो सेमिनार्स वगैरह हुई, उसमें इनके साथ मंच शेयर करने का मौका मिला, और उनको मैंने कई मंचों पर सुना है। आशीष जी ने जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से अपनी औपचारिक पढ़ाई पूरी की, वहीं से PhD की, और उसके बाद कुछ प्रमुख समाचार पत्रों में काम करने के बाद ये मीडिया शिक्षण से जुड़ते हैं। इन्होंने संवाद कला को, संवाद शास्त्र को बहुत गहराई से देखने परखने का प्रयास किया है। न सिर्फ प्रयास किया है, बल्कि अपनी कक्षाओं में विद्यार्थी के साथ नए नए प्रयोग भी किए हैं। किस तरह से विषय को रोचक अंदाज में हम पढ़ा सकते हैं, उसको प्रकट कर सकते हैं, किस तरह से विद्यार्थियों को उन सारे वो जो हमारी पाठ्य सामग्री है, अपनी संवाद शैली के माध्यम से उन्हें स्पष्ट कर सकते हैं। इस दिशा में उनके विशेष प्रयोग जो हैं वो चर्चित रहे हैं। देश में अनेक, लगभग 500 से अधिक इस तरह के आयोजनों में आप अभी से जुड़ चुके हैं। विद्यार्थी जीवन में एक डिबेटर के रूप में आपने पहचान बनाई, और जैसा प्राय होता है शिक्षण में आने के बाद, इस तरह के साहित्यिक आयोजनों में निर्णायक के रूप में उनको आमंत्रित किया जाता रहा है। 2 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई हैं, उसमें जो अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है खेल पत्रकारिता, जिसके अनेक आयामों पर आपने चर्चा की है। कोई ऐसा पक्ष नहीं है जिस पर आपने न लिखा हो, और संयोग से उस पुस्तक की भूमिका लिखने का गौरव या गर्व या जो क्रेडिट है वो भी आशीष जी ने मुझे दिया था। और कम्युनिकेशन टुडे के इसी मंच से खेल पत्रकारिता के अलग अलग पक्षों पर बात करने के लिए भी आशीष जी हमारे साथ जुड़े थे। तो उनके इस अनुभव का लाभ, उनका ये जो व्यापक अनुभव है, जिस तरह से वो अपनी बात को प्रकट करते हैं, वो अनुभवों को साझा करने के लिए मैं निवेदन करूंगा भाई आशीष द्विवेदी से कि वो इस विषय पर जो कुछ शोध, अनुसंधान और अनुभव आपने किया है वो हमारे इन प्रतिभागियों के साथ शेयर करें। डॉक्टर आशीष द्विवेदी, और उनके उस वक्तव्य के बाद जो भी हमारे इसमें मित्र जुड़े हैं संभागी के रूप में, उनके मन में कहीं कोई सवाल हो, विशेष रूप से प्रोफेसर अनिल मेहता और प्रोफेसर जया चक्रवर्ती, जो हमारे विश्वविद्यालय में लंबे समय तक हमारे साथ अध्यापन कार्य करते रहे, और ये स्वयं भी एक तरह से कहना चाहिए कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ट्रेनर रहे हैं, और अलग अलग जगह इस तरह के मंचों पर आप अपनी बात कहते रहे। तो इनको मैंने विशेष रूप से कहा था कि आज एक महत्वपूर्ण आयोजन है, तो इसमें आप हमारे साथ जुड़िए। मैं इनका भी स्वागत करता हूं। और देश के अनेक स्थानों से ममता ओझा जी मुझे दिख रही हैं, जो स्वयं एक मीडिया टीचर हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देख नहीं पा रहा हूं अभी इसमें, लेकिन मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, और भाई आशीष से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करें। आशीष द्विवेदी। आदरणीय भानावस्तर को प्रणाम करता हूं, और अहोभाग्य मेरा कि आपने ये बड़ा अवसर दिया मेरे लिए इस मंच के माध्यम से। कम्युनिकेशन टुडे की जो श्रृंखला चल रही है और उसका मैं भी साक्षी हूं। आपने जिस तरह से इस कोविड काल में लोगों को जागरूक करने का और लोगों को सक्रिय करके चेतना जागृत करने का काम किया, समाज को एकजुट करने का वो मंच प्रदान किया बातचीत का, वो अद्भुत है, विलक्षण है। उसके लिए आपका बारंबार नमन करता हूं।
और हम जैसे नवागंतुकों के लिए आप लोग जो मंच मुहैया करा रहे हैं, वो एक बड़ी उपलब्धि है कि हम इस तरह से एक छोटे से शहर सागर से मैं हूँ, आप बड़े बड़े लोगों से जुड़ने का सौभाग्य मिला है। अनिल मेहता जी जैसे प्रकांड विद्वान बैठे हुए हैं और मैंने उनको सुना है, आपके जो संवाद का जो व्याख्यान हुआ था वो सुनने का अवसर मिला था। जया मैडम बैठी हुई, चक्रवर्ती मैडम, और आपकी जो उषा जी हैं, इस पूरे श्रृंखला में सबसे अधिक आपके साथ जिन्होंने पूरा सक्रिय योगदान दिया है, उषा जी को नमन करता हूँ। उषा जी ने लगातार आपका इस पूरे यज्ञ में जिस तरह का साथ दिया है वो अभिनंदनीय है। जहां तक विषय की बात है, ये मेरा रुचि का विषय इसलिए भी है कि मैं पिछले 20 साल से जर्नलिज्म पढ़ा रहा हूँ। जर्नलिज्म जब से पढ़ाना शुरू किया, भानावत सर की किताबें पढ़ पढ़ के मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की है, और आज सौभाग्य मेरा है कि मेरी पुस्तकों का प्रस्तावना और प्राककथन, अभी जो मेरी दूसरी पुस्तक है, आज का दिन बड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है सर कि किताब घर प्रकाशन ने मेरी पुस्तक का कवर पेज भेजा है मेरे लिए, और फाइनल किताब ओके हो गई है, और एक हफ्ते करीब में वो किताब आपके पास तक पहुंच जाएगी। चलिए, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई इस मंच से आपको। संवाद शास्त्र की पुस्तक है, वो आपके हाथों में होगी। अनिल जी को भी भेजूंगा मैं। मैंने जितना सीखा है पिछले 15-20 सालों में, अनुभव में छोटा हूँ आप लोगों से, लेकिन ये मेरा रुचि का विषय है। हमारे कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उनको भी मालूम है कि जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन पढ़ाता हूँ तो प्रयास करता हूँ कि उसको प्रायोगिक तौर पर कक्षा में भी कोई अप्लाई करके देखो। आपस में जब बातचीत करते हैं हम लोग, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम आंखों से जो कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि आंखें हमारे शरीर में दो तरह का काम करती है सर। सेंडर का काम भी करती है, रिसीवर का काम भी करती है। चीजों को सेंड भी करते हैं हम, और रिसीव भी आंखों के माध्यम से करते हैं। तो आंखें सारी चीजों का केंद्र बिंदु होती है। संवाद शास्त्र में हमने कोशिश ये की है कि उन सारे पहलुओं को, सुनने की बात पर भी मैंने बात की, सुना कैसे जाता है, सुनने के कितने पहलू। हम आमतौर पर बोलने की बात तो करते, पर सुनने की बात अक्सर छोड़ देते। जो अच्छा श्रोता है होता, वही अच्छा वक्ता भी होता है। अल्बर्ट मेहरबियन नाम के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हुए, उन्होंने इस पर बड़ा शोध किया है, अशाब्दिक संवाद के ऊपर या बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। और फिर एलन पीज ने एक पुस्तक लिखी है, बॉडी लैंग्वेज, बड़ी मशहूर पुस्तक उनकी है। उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने इसको लेकर कहीं ना कहीं इंगित की है। उन्होंने जो बात की है बड़ी अंडरलाइन करने वाली है। उन्होंने कहा है कि हमारी जो बात है, शब्द है, वह केवल 7% 7% ओनली, जो 100% कम्युनिकेशन की बात करते हैं, 7% केवल हमारे शब्दों का अर्थ होता है, शब्द महत्व रखते हैं। 38% हम उन शब्दों को किस लहजे में, किस पिच पर, किस टोन में अपनी बात को कह रहे हैं, वह 38% मायने रखता है। बाकी जो 55% है, वह सारा का सारा संवाद आपका बॉडी लैंग्वेज से होता है, आपके फेस एक्सप्रेशन से होता है, आपके ऑय कांटेक्ट से होता है। तो ये जो 55% है, इसकी हम बात आमतौर पर कम करते हैं। हम बात शब्दों पर तो जोर देते हैं कि हम 7% शब्द अच्छे बात कर लेंगे। अब ये जो मानक उन्होंने बनाए हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि यूनिवर्सल मानक होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिसर्चर ने जो अपनी बात कही है, सब चीजों को समझते हुए, देखते हुए, उससे इतना तो तय है कि हमारी जो कम्युनिकेशन की जो पूरी प्रोसेस है, उसमें बॉडी लैंग्वेज या देह भाषा का एक बहुत अहम रोल है। अनकहा संवाद, ऐसा संवाद जिसमें हमें कुछ कहना नहीं पड़ता। दूसरी बड़ी बात यह है सर इसमें कि देह भाषा जो होती है, इसका अपना कोई व्याकरण नहीं है, इसका अपना कोई शब्दकोश भी नहीं है, इसकी अपनी कोई लिपि भी नहीं है। ये तीनों चीजें नहीं, ना भाषा है, ना व्याकरण है, ना लिपि है। उसके बावजूद ये तमाम भाषाओं पर भारी होती है। तमाम भाषा एक तरफ और बॉडी लैंग्वेज आपकी एक तरफ। बॉडी लैंग्वेज जो कहती है, आपकी आवाज कुछ कह रही है, लेकिन आपकी भावभंगिमाएं कुछ और कहती है। तो दोनों में जो तालमेल होता है, वह बता देता है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। अभी आपने जैसा जिक्र किया था, बच्चा अगर के आया, सबसे पहले कहां से कम्युनिकेट होगा? आंखों से। आपने उससे कहा बेटा चॉकलेट दे दिया, उसने कहा नहीं, आंखों से। जब भी हम बोलते हैं संवाद की प्रक्रिया में, तो आंख आपकी का काम करती है। आंख आपके शरीर का पूरा रिफ्लेक्ट करती है। आंखों के ऊपर कितने तरह के गाना बने हुए हैं, आंखों ही आंखों में सारा हो गया। और अभी आया था कि कहो ना कहो आंखें बोलती हैं। तो आंखों का जो कम्युनिकेशन है, उसको जिसने समझ लिया, तो सारी की सारी, हम किसी से बात करते हैं, आप जानवर को भी देखते हैं। जानवर जब आपको तौलता है, जानवर से किसी भिड़ंत होगी आपकी, कुत्ते से भिड़ंत होगी या शेर से भिड़ंत होगी, सबसे पहले वो आपकी आंखों से कम्युनिकेट करता है, और आंखों से आपके इरादे को भांप भी लेता है।
कि आप आक्रमण करने वाले हैं, क्या कुछ करने वाले हैं। तो वो सारी की सारी चीजें आपकी कम्युनिकेट होती हैं आंखों से, और वहां से आपका संवाद या संचार शुरू होता है। हम जब अनजान किसी ट्रेन में सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं, किसी अनजान के साथ होते हैं, तो हम सबसे पहले हमारी वाइब्रेशन निकलती है। हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं होता, सबसे पहले हमारी वाइब्रेशन निकलती है। उस वाइब्रेशन से समझ में आता है कि सामने वाले से हमें संवाद करना चाहिए कि नहीं। कई बार हम क्लास में, बचपन से लेकर अभी तक क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते, 60 बच्चों की क्लास है तो 2-5 बच्चे ऐसे हो जिनसे हमारा जीवन भर संवाद होता ही नहीं। उसकी क्या वजह है? क्योंकि उनका जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, उनकी जो वाइब्रेशन आ रही है, वो मैच ही नहीं करती, कभी ट्यून ही नहीं करती। हमारा उनसे संवाद, जीवन भर संवाद स्टार्ट ही नहीं हो पाता। या पड़ोस में हम देखते हैं, या सफर के दौरान हम देखते हैं, पूरा सफर हम कर लेते हैं लेकिन हमारा संवाद किसी से शुरू नहीं हो पाता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारी वैसी वाइब्रेशन जो है, वैसी उसकी जो कंपन आ रहा है आंखों से, वो वैसे हमें हमारा जो शरीर है वो उसको रिसीव नहीं कर रहा, हमारी आंखें उसको रिसीव नहीं कर रही। उस कारण से सारी की सारी चीजें बिगड़ने लगती है और संवाद शुरू नहीं हो पाता। चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक लिखी है, द एक्सप्रेशन ऑफ द एनिमल इमोशन मैन एंड एनिमल। उन्होंने पूरा इस पर, जो बॉडी लैंग्वेज, उस पर बड़ा काम किया है। 1872 में उनकी पुस्तक आई थी। तो उन्होंने कहा कि केवल न सिर्फ मनुष्य अपितु जानवर भी उसी तरह से कम्युनिकेट करते हैं, अपने भय के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने प्रेम के लिए, अपनी करुणा के लिए, अलग अलग चीजों के लिए उनके अंदर भी एक्सप्रेशंस का पावर होता है। हम देखते हैं कि कभी जब हम कुत्ते को देखते हैं, जमीन को इस तरह से खोदने का काम शुरू करता है, तो हम समझते हैं एग्रेसिव की मुद्रा में है। हम आप सड़क पर जाते हुए किसी बैल को देखते हैं, उसका भाव देखकर, उसकी आंखों को देखकर समझ लेते हैं कि हमला कर सकता है। तो कौन सा पशु, मैं केवल मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं, आप जानवरों को भी, गाय को, कुत्ते को, शेर को, जो भी पशु जानवर, उनको भी आप अगर बॉडी लैंग्वेज के जानकार हैं, थोड़ा सा भी आपको सेंस है चीजों को समझने का, देखने का, तो आप उनके इरादों को पल भर में भाप लेंगे कि ये करने क्या वाला है, ये सीधा आक्रमण करने वाला है, इस तरफ मुड़ने वाला है, रुकने वाला है, क्या करने वाला है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें उनके बॉडी लैंग्वेज से भी समझ में कहीं आ जाती है। गाय के जब आंखों को आप देखते हैं तो अलग तरह की करुणा नजर आती है। आपको जो पालतू कुत्ता होता है उसके चेहरे पर अलग तरह की करुणा नजर आती है। तो एनिमल टू एनिमल कम्युनिकेशन भी होता है, एनिमल टू मैन कम्युनिकेशन भी होता है। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है हम सबके बीच में, उसमें हमारी बॉडी, क्योंकि हमारा जो पालतू कुत्ता वो हमारी भाषा नहीं समझता, लेकिन वो हमारी भाव भंगिमाएं समझ लेता, उसके हिसाब से हमारे पास वो आ जाता है, उसकी भाव भंगिमाएं हम समझ लेते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट हो जाता है कहीं ना कहीं, और कम्युनिकेट लगातार चलता रहता है। तो आंख की जो मैं बात कर रहा था, आंख संवाद का केंद्र है, और आंखें भी कई तरह की होती। अभी जो भानावत सर की आंखें आप देखेंगे, उनकी आंखों में आपको एक अल्हड़ता देखेगी, उनकी आंखों में एक अलग किस्म का जिज्ञासुपन दिखेगा। अलग अलग तरह की आंखें हैं। आप कहीं प्रेम दिखेगा, करुणा दिखेगी, आप मदर टेरेसा की आंखें देखते हैं, भगवान बुद्ध या महावीर की आंखों को देखते हैं, तो जीवन की अलग तरह की शांति, एक करुणा, एक दया, एक स्नेह, एक वात्सल्य, वो सारे के सारे भाव उनकी आंखों में आपको नजर आते हैं। जब महात्मा गांधी की आंखों में आप देखते हैं, गुरुदेव टैगोर की आंखों में आप देखते हैं, तो ये सारी की सारी आंखें। उसके उलट आप सरदार भगत सिंह की आंखों में देखते हैं, आप चंद्रशेखर आजाद की आंखों में झांकते हैं, तो सारी की सारी आंखों में आप ओशो रजनीश की आंखों को जब देखते हैं, ओशो रजनीश की आंखों को आप देखें तो अलग ढंग से एक रहस्यमय गहराई उनकी आंखों में नजर आती है। स्वामी विवेकानंद के चेहरे को आप देखते हैं, उनके फोटो को देखते हैं तो अलग किस्म की उनकी आंखों का तेज नजर आता है। तो आंखें ही आपके तेज को भी उजागर करती हैं, आंखें आपकी निस्तेजता को भी उजागर करती हैं, आंखें ही ये बताते हैं कि आपके जीवन के प्रति रवानगी है कि नहीं, जीवन जीने का हौसला, ललक, आपका अवसाद, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, उत्साह, ललक, जो कुछ भी भाव हमारे अंदर होते हैं, वो सबका कम्युनिकेट करने का जो केंद्र है, केंद्र बिंदु है, वो कहीं और से नहीं, हमारी आंखों से ही होता है, नाक से नहीं होता, वो कान से नहीं होता, वो मुंह से नहीं होता। केवल केवल एक शरीर का हमारा अंग है, वो है आंखें। सबसे पहले हमें आंखों पर काम करना आना चाहिए। आप देखते हैं जो पुरानी फिल्मों में आप देखते थे, जैसे ही पर्दे पर प्रेम चोपड़ा या अमरीश पुरी की एंट्री होती थी, वो अलग तरह की आंखें, उनकी आंखों में लगता था कुटिलता है। उसके उलट चुलबुली आंखें, जूही चावला जब पर्दे पर आती थी, अलग ढंग की उसकी आंखें, अलग ढंग की उसकी हंसी। मधुमाला को देखते हैं, अलग ढंग का चुलबुलापन। तो किसी भी व्यक्ति के, किसी भी महिला के, किसी भी पुरुष के इरादों को समझने के लिए, उसके भाव को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसकी आंखों से संवाद की शुरुआत करनी होती है, उसकी आंखों को पढ़ना होता है। इसलिए आप देखते हैं
कि जो भी एस्ट्रोलॉजर होते हैं, भविष्यवक्ता, वो सबसे पहले आपकी आंखों में देखते हैं। जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सबसे पहले आपकी आंखों में देखते हैं। जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो पुलिस है, जो टीचर है, वो सबसे पहले आपकी आंखों में झांकना शुरू करता है और उससे पढ़ना शुरू कर देता है कि आपके इरादे क्या हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। सारी की सारी चीजें वो अपनी आंखों से झांक लेता है। प्रेमी प्रेमिका की आंखों में झांकना शुरू करता है, कितना झूठ सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, वो सारा का सारा कम्युनिकेशन उसकी आंखों से स्टार्ट हो जाता है। तो हमें कुछ आंखें बड़ी जिज्ञासु होती, आंखों में सवाल होते, कुछ प्रश्न भरी आंखें होती, तो उन आंखों को देखने से आपको अलग ढंग की फीलिंग होती है। यहाँ से हमें सवालों का सवाल पूछे जाने हैं, जिज्ञासा भरी आंखें। तो उन सारी आंखों को भी हमें, आप वकील की आंखें देखते हैं, वकील क्या करता है, अपने मुवक्किल की आंखों में देखता है कि झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, और उससे उसका कहीं ना कहीं उसको अंदाजा हो जाता है ये जो उसने बयानात दर्ज किए हैं। जज वकील की आंखों में देख रहा है, वकील मुवक्किल की आंखों में देख रहा है, हर कोई एक दूसरे की आंखों से ही तो कम्युनिकेट कर रहा है। जब हम किसी ग्रुप कम्युनिकेशन में जाते हैं, क्लासरूम में जाते हैं, हम स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं, आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए, आप आंखें चुराइए मत। तो आंखें चुराना, आंखें ना मिलाना कई बार आपकी कमतरी का प्रतीक भी माना जाता है, लेकिन हमारे समाज में ये लिहाज से भी जुड़ा हुआ है। हर जगह ऐसा नहीं है कि कमतरी का प्रतीक है। कई बार हम आंख नहीं मिलाते, ये सर के सामने मैं खड़ा होगा तो आंखें नीची कर लूंगा, ये पिताजी के सामने खड़ा होगा तो शायद आंखें नीचे, आंखें मिलाकर बात नहीं करूंगा। तो अलग अलग जगहों पर हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है। अभी आपको याद होगा टेलीविजन पर पुण्य प्रसून वाजपेयी आते थे चैनल में, आज तक में, और वो बड़ा एक्साइटमेंट के साथ ऐसे ऐसे हाथ करते हुए आते थे, इस तरह से, मतलब मेरे खजाने में कुछ है जो मैं तुम्हें बताने आया हूं, कुछ नया बताने आया हूं। उनका अंदाज इस ढंग का होता था, बड़ी स्पीड से, बड़ी गति से आते। तो अब अगर इसको अगर दूसरे डायरेक्शन में देखें तो कई बार हम ठंड में भी इस तरह से करने लगते हैं। ठंड जब बहुत तेज होती है, उससे बचने के लिए, हाथों को गर्म करने के लिए, तो अलग अलग जगहों पर हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारे जो भाव भंगिमाएं हैं, वो बदलती भी रहती। देश काल परिस्थिति के हिसाब से कई बार जो वेस्टर्न में है, अब देखिए वेस्टर्न की जो मूवीज होती, वेस्टर्न के जो लीडर्स होते, उनका जो कम्युनिकेशन है, संवाद की प्रक्रिया है, वो बहुत कम होती है, बहुत कम बोलते हैं, बात कम करते हैं। हमारे यहाँ हम लोग बहुत बाचाल, बोलते बहुत, बोलने की जो प्रक्रिया है, इसलिए हमारे यहाँ का जो अशाब्दिक संप्रेषण है, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वह उस स्तर का हो नहीं पाता। आप देखिए अजय देवगन एक फिल्म अभिनेता है, मनोज बाजपेयी एक फिल्म अभिनेता है, उनकी आंखों का संप्रेषण देखिए, वो बहुत कुछ कम्युनिकेट आंखों से करते हैं। क्यों? क्योंकि वह बातचीत कम करते हैं। उनकी गंगाजल मूवी आप देखेंगे या अपहरण मूवी आप देखेंगे, तो मैं थोड़ा सा उसको व्यवहारिक धरातल पर ले जाता हूं ताकि आपको और अच्छे से कम्युनिकेट हो चीजें। तो उसमें आप देखते हैं तो वो सारी की सारी चीजें आंखों से, अपने सिगरेट के पीने के अंदाज से, आपके चलने से, वो सारी चीजें कम्युनिकेट कर देता है। वो बोलता कुछ नहीं है, लेकिन उसकी सारी की सारी चीजें, उसके बैठने के अंदाज से वो सारी चीजें कहीं ना कहीं संचारित होने लगती। तो ये हमें समझना होगा कि सबसे पहले हमें समझना होगा कि आपकी आंखें कैसी हैं। लालची आंखें हैं, कामुकता, देखिए जो कामुकता है वो भी सबसे पहले इंडिकेशन उसका आंखों से ही होता है। सबसे प्रबल अभिव्यक्ति का माध्यम है, काम की प्रबल अभिव्यक्ति का माध्यम भी आंखें ही। तो हम आंखों से ही सारी चीजें समझ लेते हैं कि इसके अंदर, इसके जेहन में, इसके मन में चल क्या रहा। और जिसने इस चीज को समझ लिया, हम व्यवहारिक जीवन में जो गड़बड़ियां करते हैं, लोगों को समझे बगैर, लोगों को जाने बगैर, लोगों को परखे बगैर अपना व्यवहार शुरू कर देते हैं। सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम लोगों के बिहेवियर को, उनके भाव को, उनकी भंगिमाओं को, उनके बैठने के तरीके को, उठने के तरीके को पहले बहुत माइनर तरीके से ऑब्जर्व करने की शुरुआत करें, बहुत बारीक तरीके से ऑब्जर्व करने की शुरुआत करें। देखिए हम जब चलते हैं तब भी अपने आप को कम्युनिकेट करते हैं, हम जब खाते हैं तब भी अपने आप को कम्युनिकेट कर, अभिव्यक्त करते हैं। हमारा खाने का तरीका भी अपने आप को अभिव्यक्त करता है। आप देखते हैं कई बार आप जाते हैं और एक प्लेट में एक आदमी ढेर सारा खाना, उसमें दही बड़ा भी, उसमें रसगुल्ला भी, उसमें सब कुछ उसमें रख के ले आता, पूरी थाल उसका भरा हुआ, मतलब एक बार में वो सब कुछ खाना चाहता है। उसकी एक प्रवृत्ति आप उससे समझ सकते हैं, उसके खाने का तरीका कैसा। और एक दूसरा बड़ा डिसेंट तरीके से जाएगा, उसके प्लेट में केवल 2 चपाती होंगी, थोड़ी सी दाल होगी, थोड़ा सलाद होगा और कुछ नहीं। उसके खाने के तरीके से भी उसके व्यक्तित्व के एक पहलू का कम से कम हम थोड़ा बहुत ही सही अंदाजा लगा सकते हैं।
उसका चलने का तरीका क्या है। आप देखते हैं बड़ी सधी हुई चाल, एक मस्तानी चाल, एक हाथी जैसी चाल, एक एकदम से ऐसी चाल जैसे हम जीवन को ढो रहे हैं। जीवन हमारे लिए बहुत कष्टकारी, एक एक पैर रखने में आदमी ऐसा लगता है कि इसको चल रहा है कि जीवन को ढो रहा है। तो उसके चलने के अंदाज से भी समझ लेते हैं कि ये किस मिजाज का व्यक्ति है। उसका चश्मा पहनने का तरीका, उसका सिगरेट के कस लेने का तरीका, उसका खाना खाने का तरीका, उसका बोलने का तरीका, जितने भी तरह के ये सारे उसके कपड़े पहनने का तरीका, वो सारे के सारे चीज यूं ही कुछ नहीं होता। इस बात को समझ लीजिए। हमारे जीवन में अगर हमने ये वाला ब्लू कलर का शर्ट पहना तो यूं ही नहीं पहना, अगर आपने इस तरह का चश्मा लगाया तो यूं ही नहीं लगाया, अगर आपने इस तरह की बिंदी लगाई तो यूं ही नहीं लगाई है। इन सब के पीछे भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंडिकेशन तो है। आपके व्यक्तित्व को वो कहीं ना कहीं परिलक्षित तो कर रहा है, आपकी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं वो प्रदर्शित तो कर रहा है। इस बात को हमें बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। ऐसा क्यों नहीं है कि सारे लोग कुर्ते पजामे में बैठे हुए हैं, कुछ लोग शर्ट पहने, कुछ टी शर्ट पहने हैं, कुछ टॉप स्पॉट में बैठे हैं, कुछ जीन्स पहने हैं। तो सबके पहनने की वेशभूषा वो भी एक तरह का आपके संवाद में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने क्या पहना है, किस तरह से चल रहे हैं, इन सब चीजों को आपका मद, अहंकार, जो अहंकार होता है, ब्राह्मण की आंखों को देखिए, कंस की आंखों को देखिए, अहंकार आंखों में आपको झांक जाएगा। मद भरी आंखें, अहंकार भरी आंखें अलग आपको दिख जाएंगी। तो वो जो राजनेता आपके सामने बैठने का तरीका होता है, कुर्सी पर बैठने का स्टाइल है, उन सबसे भी आप उनके व्यक्तित्व का अंदाजा लगा सकते हैं, किस तरह की पर्सनालिटी। तो जर्नलिज्म में या सामान्य जीवन में यदि हमने इस चीज को इंडिकेट करना शुरू कर दिया, इस चीज को पहचानना शुरू कर दिया, तो ये बात तय मानिए कि आप किसी से भी संवाद करने के पहले मानसिक रूप से तैयार हो जाते कि इस सवाल का या इस बात करने का हमें इस तरह का जवाब मिलेगा, ये झल्ला जाएगा मेरी बात से। जैसे कि मान लीजिए आप टिकट काउंटर पर जाते हैं, टिकट काउंटर पर बहुत सारी भीड़ है, आपने 500 रुपए का नोट दिया, अब आपका टिकट आना है 90 रुपए का। अब 500 रुपए का नोट दिया, वो झुंझला जाएगा अंदर बैठा वाला, क्योंकि 500 रुपए के 3-4 लोग और नोट दे चुके हैं। अब वो झुंझलाएगा, भाई साहब खुले नहीं है कि आपके पास। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज आप समझ जाएंगे कि ये झुंझला क्यों रहा, एक पुलिस वाले की झुंझलाहट क्यों है, एक डॉक्टर की झुंझलाहट के पीछे क्या वजह है। इतने तरह का प्रेशर, काम का प्रेशर, ऊपर से दबाव, इतने तरह के फोन कॉल्स आ रहे हैं, इतने तरह की चीजें, तो वो कहीं ना कहीं उसकी झल्लाहट की वजह क्या है वह भी आपको समझ में आने लगेगी। तो एक टीचर की झल्लाहट की वजह क्या है वो भी आपको समझ में आने लगेगी। तो जब ये सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी तो आप उनसे ठीक ढंग से डील करने लगेंगे, ठीक ढंग से उनसे संवाद करने लगेंगे। और जब एक संवाद करने की कला आपके पास आ जाती है, हर किसी को टैकल करने के पहले हम घर में भी अलग अलग लोगों का मनोविज्ञान अलग अलग होता है। अभी हमारे संस्थान के सीनियर अंबिका सर बैठे हुए हैं, हम अलग अलग लोगों से, उनका एक बच्चा है, 5 साल का पोता है, उसको कैसे ट्रीट करना है, एक 28 साल का बच्चा है उससे कैसे ट्रीट करना है, माँ से कैसे ट्रीट करना है, पत्नी से कैसे करना है, बहन से कैसे करना है, भाई से कैसे करना है। तो अलग अलग लोगों की साइकोलॉजी भी अलग अलग होती है। तो मनोविज्ञान को जिसने समझ लिया, उनकी देह भाषा को जिसने समझ लिया, तो फिर कहीं आपको दिक्कत होने वाली नहीं। हम आंखों पर प्रभाव क्यों डालते हैं, आंखों पर इतना काम क्यों करते हैं, जब कहते तीखे नैन नक्श, आंखों पर बहुत काम होता है। आंखों को प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या किया जाता है, सुरमा लगाया जाता है, काजल लगाया जाता है कि हमारी आंख बड़ी चमकदार है। आंख आपकी अगर चमकदार है तो आप कहीं भी अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। तो पारदर्शी आंखें, आप दलाई लामा जी की आंखें देखिए किस ढंग की आंखें हैं। तो उन सबकी आंखों में आपको अलग अलग तरह की चीजें मिलेगी, उल्लास मिलेगा, हीनता मिलेगी, उदासी मिलेगी। ये सारी चीजें आप जब विराट कोहली की आंखों को देखते हैं, विराट कोहली जब मैदान पर आते हैं तो अलग ढंग से उनका जो एग्रेशन है, उनके एक एक एटीट्यूड में एग्रेशन झलकता है। हम खिलाड़ी होने के बाद किस तरह से वहां मैदान पर डील कर रहे हैं वो एग्रेशन आपको झलकता है। जब कोई मैच हारने की स्थिति बनती है, आप देखते हैं खिलाड़ी मैदान पर नाखून चबाने लगता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, या च्युइंगम चबाएगा, या थूकने लगेगा मैदान पर, या पैर से जमीन को कहीं ना कहीं खोदने लगेगा। कुछ ना कुछ इंडिकेशन उसके आपको मिलेंगे कि ये मैच इसके हाथ से निकलने वाला है, ये हारने की तरफ है, ये फ्रस्ट्रेट हो रहा है। 3-4 गेंद पर जब चौके लग जाते हैं तो गेंदबाज की जो भूमिका बनती है, उसकी भावभंगिमा बनती है, तो आप देखिए कैसी बन जाती है। तो ये सारी चीजें भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसके व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं संप्रेषित तो करती ही है। इन सारी चीजों को हमें समझना होगा। जब हम लड़ाई करते हैं उसमें भी हम सबसे पहले उसकी आंखों में तोलते हैं। जो पहलवान जब लड़ते हैं ना रेसलिंग के,
सबसे पहले क्या करते हैं हम देखते हैं, आंखों से तोलते हैं, चाहे सुशील कुमार हो चाहे कोई भी पहलवान सामने हो, सबसे पहले आंखों से उनके वजन को तोल लेते हैं कि इससे लड़ने में क्या हानि लाभ होने वाले हैं और क्या स्थिति बनने वाली है। उसके बाद ही वह मैदान में उतरने का काम शुरू करते हैं। इसे सबसे पहले हमें, उसके बाद दूसरा कम्युनिकेशन कैसे होता है, आंखों के अलावा नजर। आंख और नजर में क्या डिफरेंस है? आंख के साथ आपकी आईब्रो भी है, आईब्रो का कम्युनिकेशन में अलग इंपॉर्टेंस। आपका भी एक बहुत पॉपुलर सॉन्ग आया था 2 साल पहले, साउथ की हीरोइन थी प्रिया प्रकाश वारियर, खूब हिट हुआ था उसका। उसमें केवल और केवल क्या था, आईब्रो का खेल था। आंखों को, आईब्रो को केपर कितना ऊपर ले जाना है, कितना नीचे ले जाना है, वहां से पूरा का पूरा संवाद होता है। आईब्रो उठाकर आप किसी का हालचाल ही पूछ सकते हैं, क्या हाल चल रहा है। तो वो सारी की सारी चीजें आपकी आईब्रो का कम्युनिकेशन अलग ढंग का कम्युनिकेशन है। फिर आपकी जो नजर की बात कर रहा था, हम कहते हैं उसकी नजर बड़ी खराब। नजर क्या होती है, आंख से ही तो नजर निकली हुई, तो आंख और नजर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन किसी, आप देखते हैं किसी पार्टी में हम खाने की प्लेट के साथ साथ हमारी नजर किसी सुंदर महिला पर जाके टिकते, खाना यहाँ है लेकिन नजर वहां फेंक रही है। तो नजर से भी आप चुगली कर देते हैं कि आपका मिजाज कैसा है, आपका व्यक्तित्व कैसा है। नजर इसीलिए बहुत आपको सधे हुए तरीके से, सामने वाला आपकी नजर को भी कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहा है, आपकी नजर कहाँ जा रही है। फिर उसका ही एक मामला है, फिर घूरना। घूरना को बहुत नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। आप एक टक किसी को लगातार जब घूरते, नजर का विकृत रूप है घूरना। नजर आपकी अच्छी बुरी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, टेढ़ी नजर भी हो सकती है, उनकी नजर टेढ़ी हो गई। तो ये नजर का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। आंख का तो है, उसके साथ साथ आपकी नजर अगर ठीक नहीं है तो आप कहीं भी किसी भी सभा में जाएंगे, किसी भी कार्यक्रम में जाएंगे, आप अपनी नजर से उपहास का पात्र बनेंगे, लोगों में चर्चा का केंद्र बन जाएंगे कि देखो ये बात तो हमसे कर रहा है, और नजर फला वाले के नेकलेस पर है, या नजर फला वाले की थाली पर है, या कहीं और। तो उस नजर पर भी आपको कहीं ना कहीं एक नियंत्रण रखने की जरूरत है। संवाद करते समय, संचार करते समय आपकी नजर आपके वश में होनी चाहिए। हम जहां देखना चाहें नजर वहीं देखें, हम जो कहना चाहें जुबान वही कहे, हम जो सुनना चाहें कान वही सुने। हम अनावश्यक चीजों में अगर उलझ जाएंगे तो हमारा जो व्यक्तित्व है वह उपहास का केंद्र बन सकता है, उपहास का कारण भी बन सकता है। आप देखते हैं आजकल स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर बॉडी लैंग्वेज को लेकर बात बिल्कुल भी नहीं हो रही, और जो नए बच्चे आ रहे हैं, खासतौर पर स्टूडेंट्स यूनियन के लीडर्स आ रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, टीचर के सामने कैसी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए उनको नहीं पता। कहाँ झुकना है, कहाँ कैसे बात करनी है, कहाँ कैसे संवाद शुरू करना है, किसको कितना रिस्पेक्ट देना है, ये उनको कुछ भी नहीं पता। तो ये सारी की सारी चीजें हमें स्कूल लेवल पर बॉडी लैंग्वेज पर काम करने की जरूरत है। संवाद की क्लास तो प्राथमिक प्राइमरी लेवल पर शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि आप जीवन की जितनी भी लड़ाई है वो जीत लेंगे। लेकिन अगर आप बातचीत करना नहीं जानते, बातचीत की कला नहीं जानते, लोगों को प्रभावित करने की कला नहीं जानते, अपनी बात लोगों तक प्रेषित करने की कला नहीं जानते, अपने भावों को ठीक ढंग से अभिव्यक्त करने की कला नहीं जानते, तो जीवन की लड़ाई में आप पराजित होंगे, ये तय। इसलिए इन सारी चीजों को भी आपको, हम कहते हैं ना कि संवाद का मतलब क्या है कि जो मेरे दिमाग में जैसा चल रहा है, जिस नजरिए से चल रहा है, जिस भाव से चल रहा है, जिस दृष्टिकोण से चल रहा है, वही का वही, वैसा का वैसा मैं आपके दिमाग में, आपके माइंड में अगर ट्रांसफर करने में कामयाब हो रहा हूं तो मैं अच्छा कम्युनिकेटर हूं, अच्छा संचारक हूं, अच्छा संवादक हूं। अन्यथा मैं संवाद का कितना भी बड़ा पीएचडी कर लूं, कुछ भी कर लूं, मैं अगर अपनी बातचीत वहां कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं ठीक से, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशन को, अपने भाव को उस ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूं, तो आप कितने बड़े कम्युनिकेटर हैं, आप मतलब नहीं रह जाता। यदि टीचर ये चाह ले कि वह कक्षा के अंतिम व्यक्ति को पढ़ाने का काम करेगा, तो पहला व्यक्ति तो उसके लिए गौण हो जाएगा, और पहले व्यक्ति को फोकस करेगा तो अंतिम व्यक्ति गौण हो जाएगा। तो वहां उसके लिए सामंजस्य बना के रखना, एक एक की आंखों में देखना। आंखों में देखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सामने वाला भी आपकी आंखों में देखने के लिए मजबूर हो जाता है। जब आंखों में देखा जाता है तो आप चाह कर भी आप उस विषय से, उस सब्जेक्ट से अपने आप को दूर नहीं कर पाते। अब एक और बड़ी बात, कई लोग जो आंखों के भाव छुपाना चाहते हैं वो क्या करते हैं, वो काला चश्मा लगा लेते। आपने अक्सर देखा होगा कि जो जब कोई ट्रेजेडी होती है, जब कोई कैजुअलिटी होती है, तो अक्सर जितने एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेस होती हैं, वो ब्लैक गॉगल लगा के आते हैं।
वो ब्लैक गॉगल लगा के क्यों आते हैं? अब उसकी दो वजह है, मैंने जो समझ में आई मेरी, उसकी दो वजह ये है कि एक तो इन केस उनके भाव यदि आते हैं, आंसू आते हैं, तो आते ही नहीं है, बहुत कम आते हैं, तो ये चेहरे से अभिव्यक्त ना हो कि हमारे इसमें हम कम्युनिकेट, मतलब इस ट्रेजेडी के बाद हम गमगीन नहीं, वो गमगीन भाव उनके छुपे रहें, और अगर वो इनके आ रहे हैं तो वो भी ना देखें, तो इसलिए वो ब्लैक गॉगल, वो रात में भी शाम को भी ब्लैक गॉगल लगा के आएंगे। उसी तरह आप देखते हैं बॉडीगार्ड जो होते हैं पीएम के, सीएम के, राष्ट्रपति के, वो काला चश्मा पहन के क्यों आते हैं? इसलिए कि वो सब पर नजर रखते हैं, लेकिन उनकी आंखें कहां कहां क्या क्या चीजों को कम्युनिकेट कर रही हैं वो कोई नहीं देख पाता। तो वो हर एक चीज को अंदर से चीजों को ऑब्जर्व करते रहते हैं, माहौल को ऑब्जर्व करते रहते हैं। काले चश्मे लगाने के पीछे भी बड़ी वजह होती है, यूं ही कोई काला चश्मा नहीं लगाता, मेरा जो समझ है और अनुभव। तो ये काला चश्मा लगाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं फैक्टर काम करता है, उसके कारण ये सारी की सारी चीजें हमें समझ में आती है, हमें होती है। बॉडी लैंग्वेज का एक और बड़ा उदाहरण मैंने देखा, जब आप बाघा बॉर्डर रिट्रीट पर जाते, तो वहां जब दोनों देशों के फौजी आमने सामने होते, तो आप ताज्जुब करेंगे, एक भी शब्द का कम्युनिकेशन नहीं होता। मूंछों का कम्युनिकेशन है, पैर को ऊपर ले जाने का कम्युनिकेशन है, पैर को पटकने का कम्युनिकेशन है, कौन कितनी तेज गति से पैर को पटकता है, कितनी तेज गति से वह हाथों को ऐसे ऐसे हिलाएगा, वो सारा का सारा कम्युनिकेशन 101% कम्युनिकेशन है हुआ। आप कहोगे उसमें शब्द एक भी नहीं, ये भी कमाल है, एक भी शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो इतना जबरदस्त है, इतना संवाद जो होता है वो इतना अद्भुत होता है कि हम सब कुछ समझ लेते हैं कि क्या भाव है, क्या भंगिमा है, सब कुछ, एवरीथिंग। शोले मूवी आपने देखी होगी, शोले मूवी में जब गब्बर सिंह के हाथ पर एक चिंटा आता है, वो कहता है ये जो रामगढ़ का आ रहा है इसको क्या किया जाए, वो ऐसा करके उसको मार देता है। मतलब उनको एक मैसेज चला गया, इसका काम तमाम कर दीजिए। तो ये जो कम्युनिकेशन है मूवीज में भी आप देखते हैं, सिनेमा में देखते हैं, तो कई जगहों पर एक पूरी की पूरी मूवी लग रहा है कुछ नेटवर्क का इशू आ गया। एक बार कॉल ट्राई कर लीजिए सर। हाँ, या जब तक ये जुड़े तब तक अनिल जी से कहूँ क्या मैं कुछ बात करें? सर तो ऑलरेडी नोट्स पूरे अपने रेडी रख के बैठे हुए हैं। हाँ, We can definitely listen to him. हाँ, क्योंकि ये वीडियो है ना, बीच में ब्रेक आएगा तो रिकॉर्डिंग गड़बड़ होगी। नहीं अनिल सर बिल्कुल। हाँ अनिल जी, जब तक आशीष जी वापस जुड़े तब तक प्रोफेसर अनिल मेहता हमारे यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, रहे हैं, और आजकल ये वनस्थली विद्यापीठ वहाँ प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रहे हैं, और एक व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक के रूप में आपकी विशेष पहचान है। मैं बिना अधिक समय लिया उनसे अनुरोध करूंगा कि जब तक आशीष जी जुड़े तब तक इस विषय पे कुछ अपने अनुभव शेयर करें। धन्यवाद संजीव जी। सबसे पहले तो मैं आशीष जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार धारा प्रवाह रूप से अभिव्यक्त किए। विषय बहुत उपयोगी है और आशीष जी ने बहुत सारी बातों को इसमें कवर किया। आशीष जी कभी भी उनसे दोबारा जुड़ सकते हैं। मैं कुछ बात अपनी ओर से इस बीच में रखना चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि कई बार ऐसा भी होता है कि लोग कहते कुछ हैं लेकिन उनके शरीर की भाव भंगिमा, उनके शरीर की भाषा कुछ और कहती है। अनुभव और शोध इस बात को सिद्ध करते हैं कि जब व्यक्ति कहता कुछ और है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और अभिव्यक्त करती है, तो सत्यता हमेशा बॉडी लैंग्वेज से अभिव्यक्त होती है। अर्थात व्यक्ति क्या कह रहा है ये इतना ऑथेंटिक नहीं होता जितना कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या रिफ्लेक्ट कर रही है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि यदि किसी व्यक्ति को समझना है तो उसके संवाद के साथ साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये इस बात का द्योतक है कि बॉडी लैंग्वेज बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑथेंटिसिटी वास्तव में बॉडी लैंग्वेज ही अभिव्यक्त करती है, ना कि आपके शब्द।
दूसरी बात यह है कि बॉडी लैंग्वेज का संबंध आपके एटिकेट्स और मैनर्स से, आपके संस्कारों से, आपकी संस्कृति से भी काफी सीमा तक जुड़ा हुआ है। एक संस्कारित व्यक्ति या जो कि कॉर्पोरेट एटिकेट्स या पर्सनल एटिकेट से वेल वर्स्ड है, वो शायद ज्यादा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेस कर सकता है बजाय उस व्यक्ति के जो कि संस्कारी नहीं है। और यही कारण है कि बॉडी लैंग्वेज हमारे परिवेश, हमारी संस्कार और हमारे एटिकेट्स को भी व्यक्त करती है। आशीष जी ने अभी एक बात पर, जिस पर शायद अब वो शायद कुछ कहेंगे अपनी बात, में उसको यहाँ जोड़ रहा हूं कि आंखों की भाषा तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है ये भी बहुत बड़ा एक कम्युनिकेटर है और बहुत अच्छी एक पॉजिटिव लैंग्वेज है। जिस समय जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं, तो हालांकि ये बात तो तय है कि आपकी मुस्कुराहट डिपेंड करती है ओकेजन पर, लेकिन फिर भी यदि आपके चेहरे पर एक सहज स्वाभाविक मुस्कुराहट है तो ये एक पॉजिटिविटी का द्योतक है और ये इस बात को अभिव्यक्त करता है कि व्यक्ति स्वयं भी खुश मिजाज है और पॉजिटिव है। यदि आप कोई शोध करें कि मुस्कुराहट के संबंध में पुरुष आगे हैं या महिलाएं आगे हैं, तो निश्चित तौर पर आप ये पाएंगे कि मुस्कुराहट के मामलों में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कहीं अधिक आगे हैं। और इसीलिए यदि चेहरे पर किसी महिला की अगर सहज स्वाभाविक मुस्कुराहट है, तो एक साधारण नाक नक्श होते हुए भी वो महिला ज्यादा इंप्रेस करती है। तो ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि आप मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराहट बनावटी नहीं है बल्कि सहज स्वाभाविक मुस्कुराहट है। तो कोशिश ये की जाए कि जब हम संवाद करें किसी से, तो क्योंकि हमारी स्माइल एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज को कम्युनिकेट करती है, तो निश्चित तौर पर चेहरे पर मुस्कुराहट अवश्य होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ एक और जो बात है बॉडी लैंग्वेज में ही, वो है कि आप लोगों से किस प्रकार से हाथ मिलाते हैं। किसी के हाथ को पकड़ने का आपका जो तरीका है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट। संबंधों में कितनी प्रगाढ़ता है, या किसी से व्यक्ति से आपको मिलकर कैसा लगा है। एक तो आप मात्र किसी का हाथ छू रहे हैं, लेकिन जो आप किसी से हाथ मिला रहे हैं, लेकिन आप किसी का जो हाथ दबा रहे हैं उसमें जो गर्मजोशी है वो भी इस बात का अभिव्यक्त करता है कि उस व्यक्ति से मिलकर आप बहुत खुश हुए हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि आप किसी व्यक्ति का हाथ इतनी जोर से पकड़ते हैं या इतनी जोर से हिलाते हैं, तो शायद ये कोई बहुत अच्छी शिष्टता का द्योतक नहीं है और एक नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज का द्योतक है। इसी तरह से साक्षात्कार के दौरान, शायद भानवत जी का भी अनुभव है कि साक्षात के दौरान हम लोग बॉडी लैंग्वेज पर काफी ध्यान देते हैं कि व्यक्ति जो कैंडिडेट जो आया है उसके बैठने का तरीका क्या है, उसका आई कांटेक्ट सिलेक्शन कमेटी के साथ कैसा है, और उसके जो अन्य अंग संचालन है वो किस प्रकार का है। वो भी अगर पॉजिटिव होगा तो निश्चित तौर पर अन्य बातों के साथ साथ वो सिलेक्शन कमेटी पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इम्पैक्ट छोड़ता है। हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी काफी सीमा तक रिफ्लेक्ट करती है। किस प्रकार से हम बैठते हैं, किस प्रकार से हम खड़े हैं। यदि हम हमारा जो पोस्चर है वो झुका हुआ है, या बैठने का तरीका जहाँ के हमारे लेग्स आपस में क्रॉस कर रहे हैं, या हम बार बार अपने किसी अंग को बार बार खुजला रहे हैं, तो शायद ये एक नेगेटिव एक फीडबैक से जाता है और ये हमारे एक नेगेटिव सेल्फ कॉन्फिडेंस को या कम लो सेल्फ कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। बॉडी लैंग्वेज अगर हमारी पॉजिटिव है तो ये हमारी जीवंतता का भी परिचायक है। आप एक अच्छे वक्ता हैं, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल जैसे बात हो रही थी भाव भंगिमा की, वो अगर शून्य है या किसी तरह का आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी बॉडी लैंग्वेज को, तो शायद वो अच्छी से अच्छी स्पीच भी बहुत ड्राई हो सकती है। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से हम अपनी स्पीच को बहुत ही लाइवली बना सकते हैं। पूरा जो एक संप्रेषण है वो बहुत अधिक जीवंत हो सकता है। तो ये बात भी हमें विचार करनी चाहिए कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा
मुझे लगता है कि बॉडी लैंग्वेज के मामले में जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उसका परिवेश क्या है। और खास तौर से आज के इस ग्लोबलाइजेशन के जमाने में जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग है। एक अमेरिकी की, एक जापानी की, एक यूरोपियन की, एक भारतीय की जो बॉडी लैंग्वेज होगी, उसका जो भाव भंगिमा होगी, उसकी जो मुस्कुराहट होगी, उसके खड़े रहने का तरीका होगा, वो भी अलग अलग होगा। तो बहुत सी बार बॉडी लैंग्वेज कल्चर बेस्ड भी होती है। तो यदि हमें व्यक्ति को समझना है तो हमें उसके कल्चर को भी समझना होगा, और उसी प्रकार से हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी शायद रिफ्लेक्ट करना होगा। तो ये बहुत कुछ कल्चर पर भी डिपेंड करता है। कुछ हमारे जो अंग संचालन है या हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो तो बहुत कुछ स्पॉन्टेनियस होती है, लेकिन अगर हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज की अगर जानकारी है तो काफी सीमा तक हम अपने संवाद के साथ साथ एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज को भी दर्शा सकते हैं। स्पॉन्टेनिटी के साथ साथ हम बॉडी लैंग्वेज को हम डेवलप भी कर सकते हैं, न केवल अपने आप को रिफ्लेक्ट करने के लिए, लेकिन दूसरे व्यक्ति को जानने में भी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट और सक्षम है। मैं समझता हूँ आशीष जी जुड़ चुके होंगे, या जया जी भी अपनी कुछ बात रखना चाहेंगी, तो अगर वो अपनी बात रखें तो अच्छा है। हाँ जया जी आप कुछ, हाँ जया जी आप कुछ कहिए, मैं तब तक आशीष जी को कॉल करता हूँ कि वो किस स्थिति में है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हाँ थैंक यू अनिल सर, थैंक यू भानावत सर। एक्चुअली आशीष जी को सुनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था, एंड अनिल जी ने उसको फर्दर क्लैरिफाई किया द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। हम लोग हमेशा कम्युनिकेशन स्किल्स में, चाहे वो हमारे अंग्रेजी विभाग में हो या मैं जब IIIT कोटा का लेती हूँ, तो मैं हमेशा ये बताती हूँ द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। अगर आपसे कोई बात कर रहा है या आप क्लास में स्टूडेंट के तौर पे बैठे हैं और टीचर अगर कुछ भी बोल रहा है, एंड इफ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, टीचर को पता चल जाता है। कैसे? बिकॉज मे बी द टीचर इज टॉकिंग एंड लुकिंग एट एवरीवन, लेकिन आप अगर बाहर देखते हैं या यू आर एंगेज्ड इन योर ओन वर्क, तो भी बॉडी लैंग्वेज कन्वे कर देता है दैट यू आर इनअटेंटिव। दूसरी बात जो अनिल सर और आशीष जी दोनों बता रहे थे, द इम्पोर्टेंस ऑफ आई कांटेक्ट, हम लोग हमेशा नॉन वर्बल स्किल की सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मानते हैं। नॉन वर्बल स्किल में एक और चीज है दैट ओकेजनली आप अपना सर को नॉड करते हैं। तो जैसे अगर आप आशीष जी की बात से अग्री कर रहे हैं, इफ ही इज टॉकिंग टू यू और आप सर नॉड करते हैं, दैट ऑल्सो इज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग दैट यस यू आर acknowledging what he is saying and also you are responding. Response जो है वो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव भी होता है बॉडी लैंग्वेज में। And you're nodding the way you are nodding your head, या you are saying that's a good point, बीच में अगर आप बोलते भी हैं, that also is part of your body language. हम लोग इंग्लिश में ये कहते हैं that it is not only a silent way of communication, but also an acknowledgement of your presence in an interactive session. तो आप अगर कहते हैं that's a good point or that didn't strike me, तो ये आप उसके पर्सपेक्टिव को एक्सेप्ट करते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज में आपका फेशियल एक्सप्रेशन, जिसपे अनिल जी बहुत बात कर रहे थे और आशीष जी भी शुरू कर दिए थे बोलना, फेशियल एक्सप्रेशन, योर नॉडिंग ऑफ द हेड, और जिसे हम पुट ऑन योर थिंकिंग कैप कहते हैं कि आप सोचते हैं, देन ऑल्सो योर आईज रिफ्लेक्ट कि आप उस व्यक्ति की बात को सुन करके आप सिमल्टेनियसली आपकी थॉट प्रोसेस शुरू होता है और आप सोचने लगते हैं। Because your mind is like a receptacle जहां हम आइडिया स्टोर करते हैं, और स्टोर करते करते we are simultaneously editing and thinking about it. तो वो आपके
फेशियल एक्सप्रेशन पे रिफ्लेक्ट कर जाता है. सो बॉडी लैंग्वेज इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट. और जब हम सॉफ्ट स्किल्स सिखाते हैं, सो वी always hammer home this point that please remember that your body language does a lot of communication. मानवत सर और हम अभी मानवत जी ने मेंशन किया था, थोड़े दिनों पहले एक सिलेक्शन में बैठे थे where we were also looking at the way that candidate was entering and whether the eye contact with the entire board was maintained. और ये हम दोनों जने आपस में नोटिस भी कर रहे थे एंड ऑल्सो गिविंग पॉइंट्स ऑन दैट स्केल कि हाँ इसका आई कॉन्टेक्ट था. ही वॉज वाइल ही वॉज ग्रीटिंग, वो पूरी बोर्ड को लेकर के ग्रीट कर रहे थे एंड सो ऑन. एंड दैट इज वाई टुडे वी फील दैट बॉडी लैंग्वेज शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन. अनिल जी सही कह रहे थे कि आजकल स्कूल में शायद कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है ऑन बॉडी लैंग्वेज. कल मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल पढ़ रही थी ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसलिंग और मुझे लग रहा था उसमें द मिसिंग कंपोनेंट वाज दैट वी शुड काउंसल द स्टूडेंट्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर बॉडी लैंग्वेज and how you respond to a teacher, how you greet your fellow inmate, class maybe, even if you do not like someone. आशीष जी कह रहे थे सफर में हम कई बार किसी व्यक्ति से बिल्कुल ही बात नहीं करते और आप यकीन नहीं करेंगे, कल मैं जब पटना से जयपुर आ रही थी, मेरे को कोलकाता में चेंज करना हुआ था. थ्रू आउट द जर्नी ऑफ 2 hours मैं किसी से बात ही नहीं की थी बिकॉज ऑन माई राइट देयर वाज अ जेंटलमैन जो अपने कुछ मोबाइल पे कोई वीडियो देख रहा था एंड ऑन माय लेफ्ट देयर वाज अनदर पर्सन हु वाज बिजी ईटिंग. वो पूरी जर्नी में कुछ न कुछ खाता रहा. सो द पॉइंट वाज देयर वाज नो वन टू टॉक टू. तो मैं साइलेंटली दोनों को ऑब्जर्व कर रही थी. आई वाज कम्युनिकेटिंग टू माई सेल्फ बाय ऑब्जर्विंग दोस 2 पीपल कि एक तो खा ही रहा था. So he was giving this impression कि शायद वो काफी दिनों से नहीं खाया था and the other person was immersed in his video game या whatever that was, वो जो अपना मोबाइल पे वॉच कर रहा था एरोप्लेन मोड में रख करके. So sometimes it so happens. जया जी आशीष जी आ गए हैं. Oh, welcome back जी. आशीष तो जी हाँ. संजीव जी मैं एक सेंटेंस और कहना चाहूंगा जया जी को एंडोर्स करते हुए. और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि शोध इस बात को सिद्ध करते हैं कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में बेटर बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेस भी करती हैं और ज्यादा अच्छा समझती हैं. एम आई राइट जया जी? अगर आप कंपेयर करें को रिसर्च करें महिलाएं ज्यादा अच्छा बॉडी लैंग्वेज समझती भी है. यस यस यस. हाँ, ओवर टू संजीव जी. चलिए, आशीष जी के कुछ तकनीकी समस्या हो गई थी, विद्युत सेवा ठप हो गई और इस कारण से वो डिस्कनेक्ट हुए अपने से और वापस जुड़ गए. आशीष जी अपनी बातचीत का सिलसिला आप जारी रखें और उसके बाद जो प्रश्न या टिप्पणी अनिल जी ने की, जया जी ने कहा या और मित्र करेंगे, उन पर फिर अपन विस्तार से बात करेंगे. आशीष जी. आशीष जी माइक आपका, मुझे लग रहा है वो नेटवर्क का फिर प्रॉब्लम हो गया है उनको. नहीं ठीक है. आशीष जी माइक आपका, माइक अनम्यूट कीजिए पहले. आशीष जी माइक अनम्यूट करिए. माइक. हेलो. हाँ जी. हाँ आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है अब. हाँ स्टार्ट कीजिए, आ रही है आवाज. शरीर के अलग अलग अंग हैं, उन सबकी जो मुद्राएं हैं उनका अलग अलग प्रभाव मैं बात कर रहा था. और अभी यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है, बारिश का रेनी सीजन हो गया, बार बार नेटवर्क जा रहा है, उसके लिए मैं बार बार नेटवर्क जा रहा है. ये सुनील जी आपने अपना स्क्रीन शेयर किया, प्लीज एग्जिट करिए. सुनील जी आपकी आवाज क्लियर नहीं, मुझे मेरी आवाज आ रही है अब तक?
हाँ अब आ रही है। आ रही है आपकी आवाज। अब आ रही है। हम ये सुनील चौरसिया जी से रिक्वेस्ट है, अब ये जो अपना है, स्क्रीन शेयर जो है उसको बंद और कर भी दें। सारे सिम्टम्स हैं जो हमारे शरीर के होते हैं। जैसे हमारे शरीर में गर्दन की क्या भूमिका है, कंधों की क्या भूमिका। हम कंधे ऐसे उचका देते और कम्युनिकेशन कर देते कि मैं नहीं जानता। हाथों को हिलाना, कंधों को कराना, और ये सब भी कहीं ना कहीं वो अपने सफाई देने के लिए मैं बेकसूर हूं। ये हमारे कंधों का जो कम्युनिकेशन है, उचकाने का जो कम्युनिकेशन है, वह इस चीज को इंडिकेट करने का भी काम करता है। कई तरह के सिम्टम्स ऐसे होते हैं। हम चश्मा उतारते हैं, बार बार चश्मा रखते हैं। चश्मा उतारना, चश्मा चढ़ाना, ये काहे का सिंबल है? ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर चल रहे विचलन का सिंबल है। मैं चश्मा लगाऊंगा, फिर थोड़ी देर बाद चश्मा ऐसा रख दिया, फिर चश्मा लगाया, तो ये जो विचलन चल रहा है शरीर के अंदर, उसको इंडिकेट करता है, कि रिफ्लेक्ट करता है कि आप बार बार उसको बार बार लगा रहे हैं, उतार रहे हैं, फिर यहाँ पर ऐसा रख दिया, फिर यहाँ पर ऐसा रख दिया। ये कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है। हमने पेन लिया, पेन का ढक्कन ऐसा करने लगे, ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन करता है हमारे अंदर विचलन का। मैं जब क्लास लेता हूं, तो जैसे ही बच्चे ने घड़ी की तरफ देखा, एक बार घड़ी की तरफ देखा, या एक बार उसने उबासी ले ली, मैं क्लास से बाहर आ जाता हूं। ये इंडिकेशन है कि अब मैं आपको सुनने की स्थिति में नहीं हूं, आप कृपया कर बाहर जाइए। तो वहां से आपको संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद भी यदि आप डटे हुए हैं, तो आप ये अत्याचार कर रहे हैं बच्चों के ऊपर। तो ये छोटे छोटे सिंबल, छोटे छोटे सिग्नल हमें समझ में अगर आने लगते हैं, तो हम चीजों को बहुत आसानी से समझने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, और बच्चों के प्रिय भी बन जाते हैं। मैं जब क्लास छोड़ के आता हूँ, कई बार हम ऐसी चाबी लेते हैं और ऐसे ऐसे उसको ऐसे ऐसे घुमाने लगते हैं। ये भी हमारे अंदर एक विचलन का संकेत है। कुछ और दिमाग में चल रहा है। पैरों का हिलाना, पैर हमारे, आप कई लोग बैठते हैं, देखते हैं दोनों पैर ऐसे इस तरह से मूव करते रहते हैं। तो वो जो हमारे अंदर इस तरह का विचलन चल रहा है, किसी चीज को लेकर कसमकस या ऊहापोह चल रही है, उसको भी कंफ्यूजन चल रहा है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। आप पैरों को बार बार हिला रहे हैं, आपके बैठने के तरीके से भी कम्युनिकेट, चीजों को कम्युनिकेट करते हैं। मैं थोड़ा सा इंडिकेट करके बताता जाता हूं आपके लिए। जैसे कुछ टीचर आते हैं क्लास में, इस तरह से खड़े हो जाते हैं। ये जो उनका स्टाइल होता है, ये स्वामित्व की मुद्रा को दर्शाता है कि हम आपके लिए एक तरह से बहुत गया मुद्रा मानते हैं, और ये हमने इस कुर्सी पर पैर रख लिया तो हमारा अलग ढंग से उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। कई बार आप देखते हैं पुरानी फिल्मों में, टेबल पर पैर रख के जो बिगड़ेल बॉस होते हैं, टेबल पर पैर रख लेंगे और पैरों को इस तरह से ऐसे ऐसे घुमाएंगे, और वहां से सामने वाले को आते हुए देखेंगे पैरों से। तो वो भी कहीं ना कहीं उनके एक सुपीरियरिटी को, उनके एक अहंकार को दिखाने वाली एक मुद्रा है। आप देखिए, जब शिवाजी महाराज बैठते हैं अपने पटली पर, उनकी जो एक मुद्रा होती है, इस तरह से बिल्कुल तन कर बैठे हुए मुद्रा, तो वो मुद्रा आपकी स्टेट है, रीढ़ की हड्डी। तो हर तरह की मुद्रा का कुछ ना कुछ संवाद होता ही है, उसको हमें समझना पड़ेगा। कुछ लोग रीढ़ की हड्डी ऐसी धंसाकर बैठ जाते हैं, इस तरह से बैठने का तरीका है, तो वो एक अलग मुद्रा है। आप उससे एक नेगेटिव एनर्जी आती है कहीं ना कहीं आपके बैठने के तरीके से। स्टीपल की मुद्रा, आप स्टीपल करके इस तरह से बैठ जाते हैं, आप नाक को बार बार छूते हैं, आप इस तरह से बैठ गए, ये उबासी की मुद्रा है, उदासी की मुद्रा है, बोरियत की मुद्रा है। तो ये जो मुद्राएं आप देखते हैं, इन सबका बैठने का, चलने का, खड़े होने का, कुछ लोग दोनों पैर है लेकिन एक पैर पर खड़े हो जाते हैं, जबकि हमें दो पैर जो दिए हुए हैं, आप स्ट्रेट खड़े नहीं हो पाते। तो वो भी आपके अंदर जो आलस्य है, जो ढुलमुल रवैया है आपका, उस व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है कि आप एक पैर पर ढीले तरीके से अपने शरीर को छोड़ दिए। हाथ मिलाने की मुद्रा, आप कहीं किसी मिलिट्री पर्सन से हाथ मिला के देखिए, उसका हाथ मिलाने का जो अंदाज है वह किस तरह का होगा। आपको हाथ को पकड़ेगा और ऐसा 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 3 बार बड़े गर्मजोशी के साथ मिलाता है। और आप जब हाथ मिलाते, इस तरह से आपने हाथ छू लिया और खत्म कर दिया। तो कोई जब राजनेता हाथ मिलाता है, दोनों हाथ आपके हाथ में दे देता है, मतलब ये दिखाने के लिए कि मैं आपका बड़ा करीबी हूं, पर कंधे पर भी हाथ रख देता है, ये दर्शाने के लिए कि मैं आपका बड़ा आत्मीय हूं और आपके प्रति बड़ा फिक्रमंद हूं, बहुत चिंतित हूं, मैं आपका ही हूं, आपके जैसा ही हूं। तो ये प्रदर्शित करने के लिए आपके कंधे पर भी हाथ ले आएगा, दोनों हाथों को हाथों से जोड़ देगा। तो ये जब हम, और कुछ लोग अपने हाथ को समर्पित कर देते हैं, जब किसी को हम हाथ देते हैं उसको कहते हैं मरी हुई मछली जैसा हाथ किसी को दे देना है, ऐसा वो आपके हाथ के साथ ऐसा 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 कई तरह बार उसको इस तरह से हिला के रख देता है। तो ये सारी चीजें भी हमारे व्यक्तित्व को, हमारे पर्सनालिटी को कम्युनिकेट तो करती हैं। आपके चेहरे से आपकी सादगी, आपकी सौम्यता। अब हंसी भी कई तरह की होती है। जब कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन की जो हंसी है, उसमें गरिमा,
गरिमामय हंसी होती है। फिर एक कुटिल हंसी भी होती है, कुटिलता वाली हंसी भी होती है। हंस तो रहा है लेकिन उसके अंदर एक कुटिलता है, ये खलनायक की हंसी जो होती है। या आप किसी सीरियल में देखते हैं जो आप किसी भी ब्लैंक को देखते हो, उसकी हंसी, शक्ति कपूर की हंसी या अमरीश पुरी या परेश रावल की हंसी, उनकी हंसी अलग ढंग की होती है। फिर उसके अलग राजपाल यादव की हंसी, गुदगुदाने वाली हंसियां भी होती हैं, जॉनी लीवर की हंसी। तो हंसियों के भी कई तरह के प्रकार होते हैं। रोना भी कई तरह का होता है, कुछ घड़ियाली आंसू बहाते हैं, कुछ मगरमच्छी आंसू बहाते हैं, कुछ विधवा विलाप करते हैं, किसी की आंखें नम होती हैं, तो कुछ गमगीन हो जाते हैं। तो अलग अलग रोने की भी शैलियां हैं, रोने की भी अलग अलग मुद्राएं हैं। उन सारी चीजों को भी बॉडी लैंग्वेज के आप जानकार हैं, उनको आराम से बैठकर समझकर आराम से चीजों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये मामला है क्या, ये माजरा चल क्या रहा है। उन सारी चीजों को भांपने की काबिलियत आपके अंदर आ जाती है। कुल मिला के मेरा इस पूरे संवाद के जरिए ये समझाने का प्रयास है कि हम व्यक्ति अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं। कुछ एरोगेंट होते हैं, कुछ बड़े पोलाइट होते हैं, कुछ बड़े हम्बल होते हैं, कुछ अलग अलग तरह की जो प्रवृत्तियां हैं इंसान की, उन इंसानी प्रवृत्तियों को समझकर यदि हमने संवाद शुरू किया तो हमें हर एक पड़ाव पर सफलता मिलने वाली है। और यदि उनके मानस को, जैसे महिलाओं का अलग तरह का स्वभाव, महिलाओं से आप ये बात करेंगे आपका नेकलेस बड़ा सुंदर लग रहा है, आपने नया हैंडसेट लिया है क्या, आपका पर्स तो बड़ा यूनिक है, कुछ कुछ चीजें आप उनसे कहते हैं वो गदगद हो जाती है। तो उनसे आपको कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे अपना बनाना है, ये भी एक कला है कि महिलाएं आपकी सारी बातों के प्रति किस तरह से आपसे प्रभावित होती है। महिलाओं को प्रभावित करना की कला भी अगर आप कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें संवाद शास्त्र के माध्यम से, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से। चार्ली चैपलिन को आपने देखा, उन्होंने कभी कोई कम्युनिकेशन नहीं किया। उनकी जितनी फिल्में आती हैं, जितने सीरियल आते हैं, वो शब्दों से कोई बात ही नहीं करते। जितना भी कम्युनिकेशन है वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही पूरा कम्युनिकेशन करते हैं। और इतना इफेक्टिव कम्युनिकेशन है चार्ली चैपलिन का, उसके लिए शब्दों की जरूरत है क्या बताइए? किसी तरह के कोई शब्द की जरूरत, चार्ली चैपलिन की आप मूवी देख लिए, कभी कोई जरूरत महसूस होती ही नहीं। ये बॉडी लैंग्वेज एक बहुत बड़ा विषय है। और मुझे लगता है, मैं आप 2-3 बार डिस्टर्ब हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यहाँ नेटवर्क का इशू आ रहा है, पानी का माहौल बन रहा है, तो ये बार बार जा भी रहा है कुछ नेटवर्क मेरा। तो मैंने जितना भी मैं अभी समझा पाया हूँ, उस रिदम में शायद मैं भानावत स्तर की कसौटी पर उतना खरा नहीं उतर पाया हूँ। मुझे भी वैसा लगा कि मैं और भी बेहतर कर सकता हूँ, मुझे जो जानकारियां हैं। लेकिन मैंने आज जितनी बातें मुझे समझ में आती हैं या आ सकती हैं, और सुनने की भी क्षमता है ये भी मैं जानता हूँ, और बोलने की क्षमताएं तो है, सुनने की भी क्षमता है। तो अगर यदि आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी सवाल है, और तो आप बेहिचक मुझसे, मैं जितनी कोशिश करूंगा कि आपकी सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास कर सकूं। चलिए आशीष जी, आपने वास्तव में काफी अच्छी तरह से इनके अलग अलग पक्षों पर बॉडी लैंग्वेज के प्रस्तुत किए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि तकनीकी समस्याएं होती हैं तो विचार श्रृंखला, ऐसा हमें लगता है कि शायद पूरी तरह से जो हम कहना चाहते थे वो नहीं हो पाया, लेकिन श्रोताओं के साथ उसकी अनुभूति नहीं होती है। लेकिन फिर भी आपने बॉडी लैंग्वेज के, विशेषकर जो नेत्रों के माध्यम से बात की जाती है और दैनिक जीवन में जिस तरह से हम व्यवहार करते हैं, उनका क्या प्रभाव सामने वाले पर पड़ता है। आपने बिल्कुल सही कहा, वाघा बॉर्डर का आपने उदाहरण दिया, और मैंने तो वो महसूस किया है जब मैं वहां परेड देखने गया था। उधर पड़ोसी देश के जो सैनिक हैं वो किस तरह से आंखें दिखा रहे हैं भारतीयों को, और भारतीय किस तरह से उसका जवाब दे रहे हैं, या हम किस तरह से वहां रिएक्ट कर रहे हैं। तो उस सारे जो कार्य व्यापार है, बिना बोले हम किस तरह से अपने देश की एकता, अखंडता और उस सार्वभौमिकता को वहां उन इशारों के माध्यम से स्थापित करते हैं, वो दृश्य अपने आप में भाव विभोर कर देने वाले होते हैं। आपने सही कहा, जीवन के हर क्षण में हम किस तरह से बच्चों से, मित्रों से, विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हैं, हर पल उसकी झलक कहीं ना कहीं मिलती है। तो कुल मिला के निचोड़ यही है कि हम आने वाले समय में, बल्कि हम लोग थोड़ा बहुत रंगमंच से जुड़े रहे। वहां तो मैंने कई बार महसूस किया, जब साथी कलाकार बोल रहा है, फिल्मों में तो आप कैमरे चेंज कर करके वो सारी चीजें दिखा देते हैं, एक्सप्रेशन दिखा देते हैं, लेकिन जब आपका साथी कलाकार का कोई संवाद अदायगी चल रही है, वो बात कर रहा है, उस समय आपकी हरकत कैसी होगी, आप किस तरह से उसमें इन्वॉल्व होंगे, चुपचाप खड़े हैं या कहीं उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं,
आपका एक एक जो एक्शन रिएक्शन है मुझे लगता है उस सीन को एस्टेब्लिश करता है। तो इसके साथ एक बहुत व्यापक संदर्भ जुड़े हुए हैं और हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो कुछ कहने के लिए, अपनी टिप्पणी करने के लिए लालायित हो रहे हैं। तो मैं बहुत अधिक विस्तार से व्याख्या न करते हुए चाहूंगा, सुनील चौरसिया जी और आशीष रंजन जी, इन दो के नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं जो बात करना चाहते हैं, तो अपना वीडियो ऑन करें, अपना परिचय दें और सवाल या टिप्पणी जो भी हो संक्षेप में आमंत्रित है। गुड इवनिंग सर। मैं आशीष रंजन, पत्रकारिता छात्र, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया से हूँ सर। सर मेरा आपकी यहाँ भी लाइट नहीं आ रही है क्या? बिल्कुल अंधेरे में है आप। यस सर। सर बारिश के कारण लाइट की समस्या है सर। चलिए ठीक है। यस सर। सर मेरा पहला प्रश्न है कि मौखिक संचार करने का लाभ और मौखिक संचार करने का जो सर हानि, इसके बारे में सर कुछ बता दीजिए, लाभ और हानि दोनों। आशीष जी माइक अनम्यूट करिए, आप प्रश्न पूछ रहे हैं आशीष रंजन आपसे। माइक आपका। एक मिनट, वो कोशिश कर रहे हैं शायद। आप म्यूट करिए ही मत, डिस्टरबेंस नहीं हो रही है हमारी तरफ। आशीष जी ने शायद मैसेज भेजा है, नॉट ऑडिबल। आप किसको सवाल नहीं सुन पाए क्या आशीष जी? अब मनोज जी, इसका जवाब हम दे देते हैं तब हाँ तक। चलिए आप बताइए जब तक। हाँ, सवाल ये पूछा गया है कि मौखिक संप्रेषण और ये गैर मौखिक संप्रेषण, क्या दोनों में कोई अंतर है या इसका उत्तर ये है कि मौखिक संप्रेषण और ये गैर मौखिक संप्रेषण या बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे के पूरक हैं। या मूल प्रश्न ये है कि यदि मौखिक संप्रेषण के साथ साथ यदि जो कुछ आप कह रहे हैं उसका अगर आप बॉडी लैंग्वेज में भी साथ में आप रिफ्लेक्ट करते हैं तो आपका जो मौखिक संप्रेषण है वो अधिक प्रभावशाली हो जाता है। जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन में न केवल आप क्या कह रहे हैं, न केवल आपके शब्द, लेकिन आपके कहने का तरीका, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और सिर्फ यहाँ ये कहा जा सकता है कि जैसा आपका ओरल कम्युनिकेशन है, मौखिक संप्रेषण है, उसी के अनुरूप आपका बॉडी लैंग्वेज भी अगर होगा तो निश्चित तौर पर आपकी बात आप अधिक प्रभावी ढंग से रख पाएंगे। लेकिन जैसे मैं पहले कह रहा था कि मौखिक संप्रेषण के साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और रिफ्लेक्ट कर रही है तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए सुनील चौरसिया जी, आप कुछ पूछना चाहें? यस सर। हेलो सर। हेलो। हाँ सुनील जी। हाँ सुनील सर, आशीष सर के चरणों में सादर प्रणाम। हेलो। सवाल पूछिए आप। हाँ सर, हमें बॉडी लैंग्वेज के संदर्भ में जो सर आपने बोला था उसके थोड़ा सा रिपीट कर दें, क्योंकि डिस्टर्बेंस था नेटवर्क का, इस कारण हमको क्लियर सुनाई नहीं दिया है। रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वीडियो हम आपको रजिस्टर्ड ईमेल पे भेज देंगे। यस और सर। आशीष जी अपनी बात सुन नहीं पा रहे हैं, वो मैसेज भी कर रहे हैं और इशारे से भी समझा रहे हैं कि वो अपनी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। जी जी। तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। ओके थैंक यू। वो समस्या उन्हीं की है शायद। आशीष जी ईयरफोन लगा के सुनिए आप, शायद आवाज आ जाए आपको। नहीं, हमारी एक प्रॉब्लम ऐसी हो रही है, ईयरफोन में आवाज नहीं आ रही, इस कारण हमको ओपन करना पड़ा है। हाँ नहीं, मैं आशीष जी से कह रहा हूँ, वो सुन नहीं पा रहे हैं अपनी बात को। यस। और या फिर वो मोबाइल से जुड़ जाएं तो बात हो। चलिए, और कोई सवाल हो तो हमारे पास अनिल जी हैं, जोया जी हैं और डॉक्टर उषा साहनी है, या मैं स्वयं हूँ। हम लोग जितनी आपकी जिज्ञासाओं का शमन कर सकते हैं प्रयास करेंगे। डिजिटल मीडिया को लेकर कुछ भ्रमित भी लोग हो रहे हैं और कुछ लोग उसको पॉजिटिव भी ले रहे हैं, तो जो पॉजिटिव है उसके बारे में अगर हमें बताएंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। देखिए, डिजिटल मीडिया विषय नहीं है आज का अपना। हमारी जो अगली वेबिनार है 25 जून को 4:30 बजे शाम को, उस पर हम फिर बात करेंगे डिजिटल मीडिया पे। डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन एंड यूथ। आज का युवा जिस तरह से जो कुछ लिख रहा है, जो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है डिजिटल माध्यम पे, उसके अलग अलग संदर्भों पर बातचीत करेंगे।
तो वो आपका प्रश्न या आपकी जिज्ञासा उस वाले वेबिनार में अपन लेंगे। अभी Yes. जो बॉडी लैंग्वेज है उससे जुड़ा हुआ कोई आपका प्रश्न या जिज्ञासा हो या आशीष जी के वक्तव्य पे कोई टिप्पणी हो तो आप कर सकते हैं। आशीष जी आवाज आ रही है? आशीष जी शायद सुन नहीं पा रहे हैं। आज ये पूरा जो सेशन है वो भेंट चढ़ गया तकनीकी जी चुनौतियों जी पे। जी 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 जी। चलिए और कोई सवाल किसी का हो, नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं अपन। कोई और टिप्पणी किसी की? नहीं है। चलिए मैं डॉक्टर उषा साहनी से अनुरोध करूंगा कि वे फिर आज के इस वक्तव्य को यहाँ समाप्त करने की घोषणा करें और साथ ही सभी के प्रति आभार प्रदर्शन। Sure, sir. It was a wonderful talk being delivered by Ashish ji. Of course, we have been continuously facing the technical troubles, and I'm sure that Ashish ji is not able to listen to me at this moment also. But then whatever he has said, that is what this body language is and how it works. So if we all are ready to understand the technicality and very, very minute details of body language, it will become very easy for all of us to understand what the other person is saying and whether we are actually perceiving it in the correct way or not. सही तरीके से उसको समझना और उसके अनुसार फिर अपनी प्रतिक्रिया देना वो तभी संभव है जब हम किसी सामने वाले किसी भी व्यक्ति की देह भाषा को समझ सकते हैं, समझ पाने की प्रयास करते हैं। बहुत खुशबूती से आशीष जी ने अपना वक्तव्य रखा व्यवहारिक एग्जाम्पल्स के माध्यम से, और साथ ही ये तकनीकी व्यवधान के अंतर्गत जो भी हमें परेशानियां झेलनी पड़ी उनको हमारे लिए आसान बना दिया अनिल जी ने और जोया जी ने। बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि इस वक्त उन्हें याद किया जा रहा है, और उन्होंने अपनी बात को उसी गर्मजोशी के साथ यहाँ पेश किया और उन बातों को वहां से कंटिन्यू किया जहां पर आशीष हमारे से अलग हुए थे। और जिस तरह उन्होंने भी व्यावहारिक तौर पर, जैसे जोया मैम ने क्लासेस की एग्जाम्पल दी, अनिल जी ने पूरी तरह एक रूपरेखा बना करके बताया कि किस तरह और भी एक्शंस हैं, आपका हाथ मिलाना, आपका उठना बैठना, जिस तरह से आप बात करते हैं, चाहे वो इंटरव्यू हो चाहे वो कोई और सेशन हो। आप दोनों ने ही अपने अपने वक्तव्य के माध्यम से बहुत खूबसूरती से इस आज के सेशन को कॉम्प्लीमेंट किया। आप दोनों का हृदय से आभार। आशीष जी का भी विशेष आभार कि उन्होंने उन सारे तकनीकी व्यवधान के बावजूद भी बार बार अपने आप को कनेक्ट किया और सारी परेशानियों को झेलते हुए भी अपना वक्तव्य उतना ही गर्मजोशी के साथ यहाँ प्रेषित किया जिस तरह से वो अगर ये तकनीकी व्यवधान नहीं होते तो कर रहे होते। उनका भी हृदय से आभार। आप सभी जो हमारे साथ इस वक्त इस मंच से जुड़े हुए हैं और बहुत ध्यान पूर्वक सुन भी रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने अपने वीडियोस भी ऑन किए हुए हैं, and to make it clear that their body language is saying that yes, we are listening to the speakers. So that was a wonderful part of this webinar, that the speakers could make you switch on the videos, which was positive. So thanks a lot for all the participants, those who had really given a very wonderful participation, and plus to that जो आपने यहाँ पर अपने प्रश्न पूछे और उनका जवाब आपको इन eminent speakers के थ्रू प्राप्त हुआ। आप सभी का आभार। Of course पृथ्वी सेंगर जो हमारे साथ लगातार हर वेबिनार में आपके सर्टिफिकेट्स, आपके ये गूगल मीट के लिंक्स, रजिस्ट्रेशन के लिंक बनाने में हमारे साथ रहती हैं, उनका हृदय से आभार। अगर वो ये सारे काम ना संभाल रही हो तो हमारे लिए भी बहुत सारी तकनीकी व्यवधान हो, लेकिन उन्होंने इस काम को सरल बनाया हुआ है, उनका हृदय से आभार। और अनडाउटेडली अ वेरी वेरी वार्म थैंक टू प्रोफेसर संजीव भानवत। It is his baby which is actually progressing day by day, and we are able to see each other irrespective of the fact that हम in person एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन इन छोटी छोटी खिड़कियों के माध्यम से चाहे कितने ही तकनीकी व्यवधान हो उसके बावजूद हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। और वही मुस्कुराहट जो अनिल जी ने कहा, उस मुस्कुराहट के साथ हम एक दूसरे के चेहरे भी देख पा रहे हैं और जुड़ पा रहे हैं, which is the biggest thing
फॉर द ह्यूमैनिटी कि हम एक दूसरे से कनेक्ट हों. सो बहुत बहुत सारा थैंक्स प्रोफेसर संजीव भानावत को, जिनकी वजह से हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ पाते हैं बार बार, और यूट्यूब के माध्यम से उन्होंने इन सारे वेबिनार्स को बहुत अच्छा एक रूप दिया हुआ है. जो अभी नहीं जुड़ पाए हैं वे सभी लोग बाद में भी अपने लेजर के हिसाब से इसको सुन सकते हैं. सो थैंक्स टू वन एंड ऑल वंस अगेन. ओवर टू सर. चलिए, मेरी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सूचना के साथ. पृथ्वी ने अभी अभी मुझे मैसेज किया है 351 नंबर भी अच्छा है, 351 रजिस्ट्रेशन इस वेबिनार में हुए, और मेरे लिए तो ये एक विशेष संतोष की बात है कि इतने मित्रों का, विद्यार्थियों का, शिक्षकों का और अलग अलग क्षेत्र के जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनका निरंतर सहयोग इस मंच के माध्यम से मिल रहा है, जो हमें प्रोत्साहित करता है कि ये जो यात्रा है निरंतर जारी रहनी चाहिए. शीघ्र ही इसका वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे इस अभियान में सम्मिलित होने के लिए, इस विचार विमर्श की परंपरा को और गतिशील बनाने के लिए इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और अपने कमेंट्स के माध्यम से दिशा बोध देंगे और हमको प्रोत्साहित करेंगे. क्योंकि 351 मित्रों का रजिस्ट्रेशन होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. जब इतनी वेबिनार्स की बाढ़ आई हुई है जगह जगह, मैं कई जगह देखता हूँ, कई जगह जुड़ता भी हूँ, कई जगह संवाद करने का मौका मिलता है, जहाँ 5-5, 7-7 जने जुड़ते हैं. उस दौर में इतने मित्रों का सहयोग और समर्थन निश्चय ही हमारे लिए एक बहुत ही आह्लादकारी है, और ये यात्रा यूं ही जारी रहे. इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का मेरी ओर से भी, कम्युनिकेशन टुडे की ओर से भी, क्योंकि 26वें साल में हम लोग प्रवेश कर गए हैं हमारे प्रिंट के उसमें, और जैसा डॉक्टर उषा ने बताया था कि हमारे जो विशेषांक मीडिया के संबंध में, आगामी जो हमारा विशेषांक है 2023 का, जनवरी से जून तक का, वो मीडिया लिटरेसी पर है. उसकी सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट के ऊपर हैं. तो जो मीडिया से जुड़े हुए हैं या मीडिया से संबंधित विषयों पर काम कर रहे हैं, यदि वो मीडिया लिटरेसी के किसी पक्ष पर कुछ कहना चाहें, शोध करना चाहें, तो अभी समय है. अभी 30 नवंबर तक की हमने डेडलाइन निर्धारित की है. आप हमें अपने आलेख, शोध पत्र कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. इन्हीं शब्दों के साथ, इस सूचना की पुनरावृत्ति के साथ कि हम लोग 25 जून शाम 4:30 बजे फिर मिलेंगे, डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन एंड यूथ, जिसमें हमारे साथ बिहार के गंगा, नाम भूल रहा हूँ यूनिवर्सिटी का, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, डॉक्टर सुरेश चंद्र नाइक, जो पहले एमईटी में भी काम कर चुके, गंगा सहाय यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ नाम है उसका, बिहार की जो यूनिवर्सिटी है, उसमें प्रोफेसर डीन के रूप में काम कर रहे हैं. मणिपाल जयपुर के प्रोफेसर अमिताभ श्रीवास्तव और सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड के प्रोफेसर देवव्रत, वो हमारे साथ में होंगे इस विषय पर बात करने के लिए शाम 4:30 बजे. इसकी सूचना आपके रजिस्टर्ड जो ईमेल हमारे पास हैं और जो सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके माध्यम से हम शेयर करेंगे. इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं. जय हिंद, जय भारत.